Hi everyone, welcome to another video of geometry. In this video, we are going to of circle in next 10 to 15 minutes. Yes, so you will be able to complete this topic in just 15 minutes of this video. So make sure to watch it till the end and don't forget to hit the like button to share it with all your friends. Let me quickly tell you how are we going to complete the circle. So once again, this is the concept video. Then there will be a PYQ video which will be released on YouTube, which will cover all important PYQs based on circle, and we'll also have one practice test on Unacademy Learning app. So do attend all the sessions so that you can have maximum learning, and make sure that you have joined my Telegram channel. And yeah, this is the kind of session, free session, that will be conducted for circle like I conducted for quadrilateral. So I'll share the link in the Telegram channel. Right, so let's understand how many varieties of question are being asked, or normally they are being asked from circle area. So the circle question can be categorized in this four variety. So let's quickly look at that. The first variety is the questions which are simply based on the basic property. I mean tangent, secant, chord, distance of chord, and angle extended by arc, and so on and so forth. So we'll understand each and every single point so that you can solve such questions. Then there are questions which are based on theorem. It can be alternate segment theorem, tangent secant theorem, and few other formulae. Then there are questions based on area and circumference, simple area of circle, circumference of circle, which I'm sure all of you would know. So this is something that you should know. And important results. Now this has been already discussed earlier in the triangle session, or in a quadrilateral video. So make sure you have gone through that. For example, when you draw a square inside a circle, and once again if you draw a circle inside the square, so what will be the relation of radius of these two circles? So you should be pretty clear about this well in advance. So just give a thought कि दोनों की रेडियस क्या होगी, क्या वो एक दूसरे के हाफ होगी या फिर रूट 2 की रिलेशन होगा, क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली अगर आपको सर्कल एक दिया हुआ है रेडियस आर का, और उसके अंदर आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आर के टर्म्स में क्या होगी. तो ये सारे रिजल्ट्स अगर आप पहले से समझ के जाते हो, याद करके जाते हो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस याद आते हैं. तो मेरा ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का वीडियो जरूर से देख लेना, उसमें ये पॉइंट्स मैंने बताए हुए. चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कॉन्सेप्ट समझते हैं. बट उससे पहले दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि अनअकैडमी का ये ऑफर चल रहा है. सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माय कोड चार्टेड एंड अवेल दिस ऑफर. सो अनअकैडमी ऐप पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी. मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग कोड चार्टेड एंड डू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दैट. तो सबसे पहले हम सर्कल के बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं. जैसे आपको ये टर्म्स तो पता ही होंगे, टेंजेंट, सेकंड, कॉर्ड वगैरह क्या होता है, सेगमेंट, सेक्टर, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए. अब जैसे एक पॉइंट है कि अगर आप डायमीटर की बात करते हो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल. तो ये ए बी डायमीटर है सर्कल का, तो डेफिनेटली सेंटर उसके ऊपर ही कहीं पे होगा. लेट ओ बी द सेंटर. तो डायमीटर अगर सर्कमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, चाहे यहाँ पे बनाए या कहीं और बनाए. डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा. सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट पे एंगल बनाता है तो वो लेस देन 90 डिग्री होगा, और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट पे एंगल बनाता है वो मोर देन 90 डिग्री होगा. तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सिमिलरली दोस्तों, आपको डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर आप कैसे मेजर करते हो. तो आप सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, पहले तो ये जो कॉर्ड है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करते हो तो ये रेडियस बन जाएगा. मोस्ट लाइकली यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा. तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधा सीधा आपको इस तरीके से सोचना है. अच्छा, अगर आप दो इक्वल लेंथ के कॉर्ड लेते हो, जैसे ए बी और सी डी इक्वल लेंथ के कॉर्ड है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, तो उसका डिस्टेंस भी सेंटर से सेम होगा. अगर ये x है तो ये भी x ही होगा. तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए. बेसिक एरिया का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर. तो ये ध्यान रखना. एंड क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडी 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर whose centers are 25 सेंटीमीटर अपार्ट इज. अब देखो दो सर्कल आपको बताए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट्स टेक दिस पॉइंट एज ए एंड बी, ठीक है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी एंड डी. सो सी एंड डी आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल. अब छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमें 15 दे रखी है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें 20 दे रखी है, और दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज सी डी हमें 25 दे रखा है. तो ये हमें पता चल गया यार, ये तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया. 15 20 25 3 4 5 इंटू 5 कर दिया, तो मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है. अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा. सो 1/2 परपेंडिकुलर आर्म्स दैट इज 15 इंटू 20.
विच शुड बी सेम एज, अगर मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लिया ए पी, सो कैन आई से इट शुड बी इक्वल टू 1/2 ए पी इंटू सी डी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि ये जो फिगर है, अगर मैं सी को बी से कनेक्ट कर दूं, बी को डी से कनेक्ट कर दूं, तो ये काइट बन गया है। और यहाँ पे आपको, जैसे आप मैंने आगे भी बताया था कि आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करनी आ रही है। तो काइट के अंदर जो शॉर्टर डायगोनल है वो लॉन्गर डायगोनल से बाइसेक्ट होता है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो ए पी है मेरा, तो उसका डबल करेंगे तो मुझे पूरा ए बी मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए पी 12 मिल जाएगा, मतलब पूरा जो ए बी कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड, वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। टेंजेंट जो है वो हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सट्रूड पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर आप एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब ए पी एंड बीपी दोनों सेम होगी, तो ये ध्यान में रखना। वंस अगेन एक और चीज बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ओ को ए से कनेक्ट कर दूं, ओ को बी से कनेक्ट कर दूं, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये जो है ए ओ बी पी वो एक काइट बन गया। तो काइट के सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं एक आर्क डी सी लेता हूँ, तो आर्क डीसी पॉइंट बी पे जो एंगल बनाता है उतना ही एंगल पॉइंट ए पे बनाएगा। तो एक आर्क दो अलग अलग पॉइंट पे सेम एंगल बनाता है अगर वो दोनों पॉइंट सेम सेगमेंट में है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको सेगमेंट पता होना चाहिए। जैसे अब समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। अगर मैं डी और सी को कनेक्ट कर दूं तो ये कॉर्ड बन गया। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये दो पार्ट जो है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो अगर आप पॉइंट ए एंड बी देखोगे, मैंने सेम सेगमेंट में लिया है, इसलिए आर्क डीसी जो है वो सेम एंगल बनाता है। बट अगर दो पॉइंट ऑपोजिट सेगमेंट में है, जैसे ए मैंने यहाँ लिया, सी यहाँ पे लिया, तो अब जो डीबी एंगल बनाता है सी पे और ए पे, वो दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। मतलब ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ये जो है ना ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और हमने प्रीवियस सेशन में क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स में देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। कहाँ से आया, यहाँ से ये पॉइंट आया। ठीक है, सो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। Angle subtended by an arc at the circumference will be half of angle subtended by same arc at the center। जैसे अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। कि ज्यादातर प्रॉपर्टी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पता रहती है, एक जस्ट ब्रश अप करने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाट आई एम हेल्पिंग यू टू डू इट। यू नो, आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड 1 or 2 आवर्स बिकॉज दैट विल बी टू बोरिंग फॉर यू। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, डेफिनेटली आपका सर्कल क्लियर हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से PYQs और प्रैक्टिस टेस्ट तो मैं करवा ही रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो 15-20 खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर मॉक में जब क्वेश्चन आते हैं जो इजी ट्रिकी होते हैं वो टैकल करने हैं, डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर कॉर्ड ED इज पैरेलल टू डायमीटर AC। हमें बताया हुआ है कि AC इज द डायमीटर, O सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, CBE is 65 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DEC। हमें CBE ये 65 डिग्री दिया हुआ है और हमें DEC ये एंगल पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोस्तों मुझे पता है कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसमें से ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, तभी टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। अब इफ यू सी AE एक आर्क है, ठीक है, तो ये आर्क यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वही एंगल पॉइंट सी पे बनाएगा। तो कहने से ये 25 है तो ये भी 25 ही होना चाहिए। और आपको पता है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 25 आ जाएगा। तो DEC जो आपको फाइंड करना था कितना आएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। वी आर डन विद द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी हमें समझना है इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। तो दोस्तों अगर मैं दो कॉर्ड लेता हूं AB एंड CD, अब अगर मैं उसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, डेफिनेटली वो कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है उसको हमने P कह दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे PA इंटू PB विल बी इक्वल टू PC इंटू PD। ये रिलेशनशिप सही होगा। इनफैक्ट अगर यही दो कॉर्ड, सपोज मैं दो कॉर्ड लेता हूँ BC एंड AD, वो यहाँ पे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ QA इंटू QD
विल बी इक्वल टू QC इंटू QB। तो ये हो गया इंटरनल इंटरसेक्शन। तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपको ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, थ्योरम्स ले रहे हैं, जो मैंने 3 वैरायटी बताई थी स्टार्टिंग में, बेसिक प्रॉपर्टी, थ्योरम, एरिया, सरकमफरेंस एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं लाइन में, ठीक है। जैसे टेंजेंट सेकंड एक थ्योरम है, तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और एक सेकंड ड्रॉ करते हो, तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप सही होती है। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, याद रख लेना है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये भी काफी यूज होता है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना होता है। क्या है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अब वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं कॉर्ड BC लेता हूं और एक टेंजेंट CD लेता हूं, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना ना, उतना ही एंगल ये कॉर्ड सरकमफरेंस पे कोई पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उसके बराबर होता है। मतलब ये एंगल जितना है उतना ही एंगल होगा। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से गौर से समझना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली आपको एक आध क्वेश्चन इसका मिल जाएगा, तो वंस अगेन थोड़ा कॉन्शियसली इसको देखना कि कैसे ये यूज हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट्स एकदम से इसको यूज नहीं कर पाते। तो आप बार बार इसको रिवाइज करोगे, डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कॉर्ड एंड टेंजेंट का। इन द फॉलोइंग गिवन फिगर लाइंस AD, AE, CB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। तो ये सारे टेंजेंट्स है, ओके, एंड ये भी CB भी टेंजेंट है, ये तीनों टेंजेंट है। अब हमें कहा है कि AD इज 4, ये हमें 4 दिया है, तो डेफिनेटली AE भी कितना होगा, 4 होगा। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा है, ABC का पेरीमीटर कितना होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, तो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, ये पॉइंट एक ले लो C से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, कहने से दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये पॉइंट B से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, BF एंड BE, तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, से Y ये दोनों का लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है, X एंड Y सेम होना जरूरी नहीं है, राइट। अब हमें पता है ये पूरा कितना है 4, तो AC कितना हो जाएगा, तो कहने से AD में से X सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4 माइनस एक्स आएगा। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा, 4 माइनस वाई। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो कैन आई से वो आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 माइनस वाई। तो अगर आप उसको चेक करोगे तो वो सीधा सीधा 8 आ जाएगा, दैट्स इट आपका पेरीमीटर, क्योंकि एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, जब मैं ये 3 वैल्यूज को ऐड करूंगा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़े इजी क्वेश्चन है ऑफकोर्स, बट ऐसे क्वेश्चन भी कैट में आ चुके हैं। अब जब हम प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे और PYQ लेंगे, उसमें थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, पर अभी कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि आपको इससे फायदा हुआ। लास्ट पॉइंट है कॉमन टेंजेंट्स, तो उसका लेंथ का फॉर्मूला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बट समझ लेते हैं कि कैसे आया। पहले तो अगर 2 अलग अलग सर्कल है तो उसमें 4 टेंजेंट बना सकते हो, 2 ऐसे जिसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, और ऐसे भी बना सकते हो आप, इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। अगर 2 सर्कल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 2 डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 ही कॉमन टेंजेंट हो गए, है ना, ट्रांसवर्स कोई भी नहीं होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके ऊपर भी कैट में पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है। अब समझते हैं कि भाई ये AB का डिस्टेंस या फिर CD का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। AB और CD दोनों सेम हो गए, याद रखना, दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो दोनों सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए, R1 एंड R2, ठीक है। उसके अलावा दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस D पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप सीधा ये फॉर्मूला को यूज करके इसका लेंथ, इसका कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हो। सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आप मेरे साथ जुड़ोगे मंडे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉर द प्रैक्टिस क्लास, और कल मैं वीडियो रिलीज करूंगा इसका PYQ का। साथ में कल मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी कंडक्ट कर रहा हूँ, शाम को 4 बजे यूट्यूब पे होगा, तो उसको भी जरूर से देखना। उसमें मैं क्वांट के क्वेश्चन कैसे आपने पिक किए हुए होने चाहिए थे। आई एम श्योर आप सब लोग कल मॉक टेस्ट लिखोगे 12 से 2 में, और फिर आप मेरे साथ 4 बजे जुड़ोगे, तो मैं उसमें वापस से आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी, कैसे आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो ये सारे सेशन जरूर से अटेंड करना। वंस अगेन प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड चार्टन, उसमें आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में आप मेरे फ्री सेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मेक श्योर आप सबने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और वीडियो को लाइक कर देना। दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।